இன்னும் ஆண்டவரிடத்தில் நாம் கிட்டி சேரும்படியாக प्रभु की इच्छा रहती है कि हम प्रभु के पास आए। ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னென்றால் இன்னும் நாம் அவரிடத்தில் கிட்டி சேர வேண்டும். इसलिए प्रभु हमारे जीवन में अलग अलग बातें ऐसे करता है जिसके ऐसे जीवन में काम करता है जिस काम के कारण हम उसके पास आ सकते। அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளும் எதற்காக வேண்டால் இன்னும் அவரை நாம் கிட்டி சேரும்படியாக. दुख होने के बाद तो हम हमेशा प्रभु के पास आते हैं। துக்கத்தில் நாம் என்ன செய்யறோம்? அவர் பக்கத்தில் வருகிறோம். उसके लिए कोई जरूरत नहीं, हम जब भी दुखी होते हैं हम पहले प्रभु के पास ही जाते हैं। அதை என்ன செய்யறோம்னா துக்கத்தில் நம்ம ஆண்டவரை தேடுகிறோம். लेकिन प्रभु की इच्छा रहती है सुख के समय पे भी हम उसके पास। ஆனா ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னவென்றால் இன்பத்திலும் அவரை கிட்டி சேர வேண்டும். हमारे जीवन की हर बात हर काम प्रभु की प्रार्थना से और वचन से होनी चाहिए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியும் தேவ சித்தத்தின்படியும் நாம் செய்ய வேண்டும். हमारी सुबह मसीह में, நம்மளுடைய காலை நேரம் ஆண்டவருக்குள்ளே, हमारी रात मसीह में, ராத்திரி நேரமும் ஆண்டவருக்குள்ளே, हमारा सब कुछ मसीह में। எல்லாமே கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக. मसीह नहीं तो कुछ नहीं। இயேசு கிறிஸ்து இயேசு இல்லாவிட்டால் நாம் ஒன்றுமே இல்லை. तो इसलिए आज हम जो कुछ प्रभु हमारे जिंदगी में जो कुछ करता है इसलिए करता है ताकि हम उसके पास आए। நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிற ஒவ்வொரு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் தேவனை கிட்டி சேரும்படியாக. और हम हमारे रोज के जीवन में बहुत बिजी व्यक्ति है। நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப நம்ம பிஸியா இருக்கிறோம். प्रभु के लिए हम बिजी नहीं है, हम दिखाते हैं। ஆனா நாம காண்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் பிஸியாகல உம்மை கிட்டி சேர்கிறேன். हम प्रभु तेरे लिए कभी भी बिजी नहीं है। உமக்காக நாங்க நேரம் எடுக்க ஒரு நாள் நாங்க பிஸியாக இல்லை. नहीं, हम अभी भी देख यहाँ है तेरे सामने। இப்போது நாங்க உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கிறோம். तुझे पुकारा हम आए। நீங்க கூப்பிட்டீங்க நாங்க வந்து விட்டோம். तो इसीलिए आज बड़ा ही अच्छा दिन प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया आज का दिन जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல நாளுக்காக நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம். तो आज हम वचन की ओर देखेंगे। இன்றைக்கு நாம் வசனத்தை பார்ப்போம். बाइबल कहता है कि हर बात वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। ஆண்டவர் பைபிளில் சொல்லப்படுகிறது எல்லா காரியமும் வார்த்தை மூலமாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. तो इसीलिए हम वचन से देखेंगे। நாம் வார்த்தை மூலம் பார்ப்போம். बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है कि संसार में जैसे वटीवरण होता है और உலகத்தில் காண்பிக்கிறது நம்மளுடைய இது 6வது மாசத்துல செய்யப்படுகிறது. तो हम मसीह हम क्यों वटीवरण जैसे संसार में वटीवरण होता है नारियल और चावल और ब्लाउज पीस उनके गोद में डाल देते हैं। प्रेग्नेंट होती है 7वें महीने की प्रेग्नेंट होती है उसके गोद में डालते हैं। 7வது மாசத்துல உலகத்தில் சடங்காசாரப்படியே தேங்காய் அப்புறம் பூ மாலை பழங்கள் எல்லாம் வச்சு அவங்க சடங்காசாரத்தை செய்கிறார்கள். तो मसीह है, ஆனா நாம் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறோம். हम ये सब करना चाहिए क्या? நாம் இதை செய்ய வேண்டுமா? नहीं, வேண்டாம். हम नहीं कर सकते। நாம் இதை செய்யக்கூடாது. तो हम वो विधि नहीं करते। நம்ம அந்த சடங்காசாரத்தை செய்ய மாட்டோம். पर हम क्या करते हैं? ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? तो बाइबल हमें बताता है। பைபிள் என்ன சொல்லப்படுகிறது? तो बाइबल हमें जो बताता है वही हम करते हैं। பைபிள்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம் நிறைவேற்ற तो வேண்டும். हम वटीवरण नहीं करते। அதேபடியாக உலகத்தின் சடங்காசாரத்தை நாம் செய்ய மாட்டோம். 7वें महीने में प्रेयर नहीं करते। 7வது மாசத்துல நாம் அந்த இது சடங்காசாரத்தை செய்ய மாட்டோம். यहाँ हम 6वें महीने की प्रार्थना देते हैं। இந்த இடத்துல நம்ம 6வது மாசத்துல நாம ப்ரேயர் பண்ண கூடி இருக்கிறோம். तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमें 6th मंथ में जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसे उस मंथ में उसे क्यों प्रेयर करना है। அந்த 6வது மாசத்துல வார்த்தையின்படி ஏன் நாம் கூடி ஜெபிக்கிறோம் எல்லாரும் வாழ்த்துகிறோம் என்று தெரிய வரும். और प्रेग्नेंट होने के बाद लेडी को क्यों प्रेयर करना। அவ கரு தரிச்ச பிறகு ஏன் அந்த சகோதரி அந்த ஸ்திரீயானவள் ப்ரேயர் பண்ண வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும். अक्सर लोग पहली बार जो प्रेग्नेंट होते हैं वही तभी करते हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम नहीं करते। எப்பவும் முதல் கரு உருவாக்கப்படும் போதுதான் அவங்கள என்ன செய்வாங்க, இந்த ப்ரேயர் நடத்துவாங்க. 2வது நேரம் 3வது நேரம் செய்ய மாட்டார்கள். लेकिन पहली बार प्रेग्नेंट हो, सेकेंड बार प्रेग्नेंट हो, थर्ड बार प्रेग्नेंट हो, लेकिन दर्द तो स्त्रियों को वही होता है। ஃபர்ஸ்ட் நேரம் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா செகண்ட் இல்லது 3வது எந்த நேரம் இருந்தாலும் அந்த வலி அப்படிதான் இருக்கும். அதற்காக நாம் என்ன செய்கிறோம்? डिलीवरी के समय पे सिर्फ फर्स्ट डिलीवरी में ही पेन नहीं होता है। டெலிவரி நேரத்துல ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரியில தான் நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. सेकेंड में भी होता है, 2வதுலயும் थर्ड में भी होता है, 3வதுலயும் अगर फोर्थ बच्चा है फोर्थ में भी होगा, ஃபோர்த்லையும் நடக்கும். हाँ। तो जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है ஒரு ஸ்திரீயானவள் கரு தரிக்கும் போது उसे यीशु की जरूरत होती है। அவளுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆவியானவரின் ஒத்தாசை. तो हम यही आज देखकर फिर आज हम रजनी और वर्टर के लिए प्रेयर करेंगे। அதை அந்த வார்த்தை மூலம் நாங்கள் பார்த்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் சகோதரன் சகோதரிக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். हम लोग पढ़ेंगे लूक अध्याय 1।
லூக்கா அதிகாரம் லூக்கா 8 அதிகாரம் 26 to 58 56 तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1। லூக்கா அதிகாரம் 1 அதிகாரம் 26 to 56। लूका अध्याय 1 லூக் chapter number 1 और उसका 26 to 56। 26 56 26 to 56। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के साथ एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है और यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि वो वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में आई और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया और जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई थी वो पूरी होगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी को दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया और उन पर दया कर स्मरण करे, जो अब्राहम के वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बापदादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। ஆறாம் மாதத்திலே கேப்ரியல் என்னும் தூதன் கலிலியாவில் உள்ள நாசரத் என்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையினிடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டாள். அந்த கன்னிகையின் பேர் மரியாள். அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னோடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றார். அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றார். இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவார்கள். அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எண்ணப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும்
என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார், அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றார். அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி, இது எப்படி ஆகும், புருஷனே அறியேனே என்றார். தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதித்திரமாக, பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிலவிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும். இதோ உனக்கு இனத்தாலா இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பந்தரிக்கிறார். மலடி எண்ணப்பட்ட அவளுக்கு இது 6ஆம் மாதம். தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றார். அதற்கு மரியாள், இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உடைய வார்த்தைப்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள். அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டாள். அந்நாட்களில் மரியாள் எழுந்து மலை நாட்டில் உள்ள யூதாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு தீவிரமாய் போய் சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள். எலிசபெத் மரியாளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டபோது அவளுடைய வயிற்றிலிருந்த பிள்ளை துள்ளிட்டு, எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு உரத்த சத்தமா, ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எனக்கு எதினால் கிடைத்தது. இதோ நீ வாழ்க்கையின் சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை களிப்பாய் துள்ளிட்டு, விசுவாசித்தவளை பாக்கியவதி, கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும் என்றார். அப்பொழுது மரியாள், என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது, என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனை கலிகூறுகிறது. அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மை நோக்கி பார்த்தார். இதோ இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள். வல்லமையுடையவர் மகிமையானவர் எனக்கு செய்தார், அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது. அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறைக்கும் உள்ளது. தம்முடைய உயர்த்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார், இருதை சிந்தையிலே அறைந்துள்ளவர்களை சிதறடித்தார். பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார். பசியுள்ளவர்களே நன்மையினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்களை வெறுமையாக அனுப்பிவிட்டார். நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சன்னதிக்கும் என்றைக்கும் இரக்கம் செய்ய நினைத்து தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலை ஆதரித்தார் என்றார். மரியாள் ஏறக்குறைய 3 மாதம் அவருடனே இருந்து தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான். ஜெபிப்போம். पवित्र पवित्र करुणा में देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए आप सहायता करना। वचन का ताबा हम आपके हाथों में देते हैं। हम पर दया करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम इस अध्याय में 2 बार स्वर्गदूत प्रकट हुआ ये बता हम देखते हैं। இந்த அதிகாரத்திலே 2 நேரம் தேவதூதன் வெளிப்பட்டார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். स्वर्गदूत का नाम गिब्राइल है और देवदूतन पेयर गैब्रिएल। और वो 2 बार प्रकट हुआ, एक हुआ जकरिया के ऊपर और दूसरा इसके ऊपर मरियम के ऊपर। 2 நேரம் தூதன் வெளிப்பட்டது, ஒரு நேரம் जकरियाவை பார்த்து, இன்னொரு நேரம் மரியாளை பார்த்து। और हम देखते हैं कि दोनों बार उसने यही भविष्यवाणी की, यही बताया कि तुम जैसे जकरिया से कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तू पिता कहलाया जाएगा। और मरियम को देखते हैं कि मरियम को कहा गया कि तू गर्भवती होगी, तू एक बेटे को जन्म देगी। 2 நேரம் தூதன் வெளிப்பட்டதின் காரணம், முதல் நேரம் சகரியாவிடத்தில் சொன்னது உன்னுடைய மனைவி கர்ப்பம் தரிப்பாள் என்று, அதுபோல மரியாளிடமும் சொன்னது நீ கர்ப்பம் தரிக்க போகிறாள் என்று। अगर गर्भ धारणा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, கர்ப்பம் தரிக்கிறது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான காரியம் கிடையாது। परमेश्वर अपने प्रमुख स्वर्गदूत को नहीं भेजता। இது முக்கியமான காரியம் இல்லாவிட்டால் அவர் தன்னுடைய தேவதூதனை அனுப்பிவிட்டிருக்க மாட்டார்। परमेश्वर के सामने हमेशा प्रमुख स्वर्गदूत है। ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் ஒரு பிரதான ஸ்வர்கதூதர் இருக்கிறார், தேவதூதர் இருக்கிறார்। सबसे बड़ा प्रमुख स्वर्गदूत है गिब्राइल। அதில் பிரதான தேவதூதன் கேப்ரியல், जो मैसेंजर कहा जाता है, हमें मैसेज भेजने वाला, परमेश्वर का संदेश बताने वाला उसे कहा गया। தேவனுடைய செய்தி அல்லது தேவனுடைய தூது அனுப்புகிறவர்। और उसके द्वारा संदेश दिया गया जकरिया को, जो बहुत बूढ़ा हो गया था, पति पत्नी धर्मी थे, दोनों भी धर्मी थे, एलिशिबा और जकरिया दोनों भी धर्मी थे। उन्हें संदेश दिया गया कि तुम्हें एक बच्चा मिलने होने वाला है। சகரியாவும் எலிசபெத்தும் வயது சென்றவர்களாக இருந்தபோதும் தேவதூதன் சந்தித்து உனக்கு ஒரு குறித்த காலத்திலே கர்ப்பம் தரிக்கும் என்று சொல்கிறார்கள்। एलिशिबा बांझ थी, எலிசபெத் மலடியா இருந்தால், बूढ़ी भी हो चुकी थी, வயது சென்றவளா இருந்தால், बच्चा होना असंभव था। அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது ஆகாத காரியம்। स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उसे कहा कि तुझे बच्चा होगा। தேவதூதன்
வெளிப்பட்டு சொல்கிறார் உனக்கு குழந்தை பிறக்கும். उसके बाद हम देखते हैं मरियम के विषय पर। அதற்கு பிறகு நாம் பார்க்கிறோம் மரியாளுடைய காரியத்தை. मरियम भी गर्भवती होना अशक्य था, மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலும் கருத்தரிக்கிறது கூடாத காரியம். क्योंकि वो कुंवारी थी, அவ ஒரு கன்னிகை, वो किसी पुरुष को नहीं जानती எந்த புருஷனையும் அறியாதவள். और बिना पुरुष के बच्चे जन्ना असंभव है। புருஷனை அறியாதிருந்தவள் கன்னிகை குழந்தை தரிக்க முடியாது. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी स्वर्गदूत प्रकट होकर उसे कहता है तू गर्भवती होगी। அங்க தூதன் சொல்லுகிறான் நீ கர்ப்பம் தரிப்பால் உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்று. गर्भधारणा एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। கர்ப்பம் தரிக்கிறது இது தேவன் அருளுகிற ஒரு ஈவாக காணப்படுகிறது. परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एकदम परमेश्वर की ओर से मिला हुआ स्त्रियों को एकदम बेस्ट गिफ्ट दिया है। ஸ்திரீகளுக்கு தேவன் தன்னுடைய ஈவாக ஸ்திரீகளுக்கு தருகிறார். और हम देखते हैं कि जब भी स्त्री गर्भधारणा करती है तो उसके लिए स्त्री रेडी होना चाहिए। जैसे इसने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, हाँ मेरे जीवन में ऐसा ही हो। ஒரு ஸ்திரீக்கு கரு தரிக்கும் போது அவ கரு உருவாவதற்கு முன்னாக அதுக்கு ஒரு ஆயத்தமாக தேவை. அதற்காக தான் மரியா சொல்கிறான் நான் உம்முடைய அடிமை. हाँ तो गर्भधारणा होना ये परमेश्वर की ओर से है। கரு தரிக்கிறது இது தேவனுடைய ஈவு. क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से योजना बनाई कि मनुष्य बढ़े। தேவனுடைய திட்டம் ஆரம்பத்திலிருந்து இப்படி இருந்தது कि மனிதர்களோட பெருக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும். परमेश्वर ने पृथ्वी इसलिए बनाई ताकि मनुष्य बसे। பூமி எதுக்காக அவர் வந்தாக்கினார் என்றால் மனிதர்கள் அதில் இருக்கும்படியாக. पृथ्वी पर बहुतायत इंसान हो, बहुतायत मनुष्य हो। மனிதர்கள் பெருகிக் கொண்டு இருக்கதான் அவர் பூமியை உண்டாக்கினார். इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना की। ஆகவே அவர் ஒரு ஸ்திரீயையும் ஒரு புருஷனையும் ஏற்பாடு பண்ணினார். इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर बहुतायत इंसान बनाए। ஆகவே இந்த பூமியிலே அவர் ஏராளமான மனிதர்களை உண்டாக்கினார். लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, ஆனால் ஆண்டவரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட और ஜனங்கள் परमेश्वर जिनसे स्पेशल कुछ अपने काम के लिए अपने राज्य में काम कराना चाहता है, ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய காரியத்துக்காக தெரிந்தெடுக்கிறார். हाँ उनके लिए खास जैसे जकरिया और एलीशिबा जैसे गर्भ बच्चा होना ये असंभव बात था, लेकिन वो बच्चा परमेश्वर की ओर से उन्हें गिफ्ट मिला। तो बच्चा होना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। ஜகரியா எலிசபெத் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகிறது மிக கடினமான காரியம். ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வையில் அது மிக கடினமான காரியம் அல்ல. தேவன் அதை நிறைவேற்றுகிறார். अगर बांझ स्त्री हुई भी மலடியா இருந்தாலும் और बूढ़ी भी स्त्री हुई வயது சென்றவளா இருந்தாலும் तो भी परमेश्वर बच्चे बना दे सकता है। ஆனாலும் ஆண்டவர் கற்பம் தரிக்க ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும். स्त्री गर्भधारणा कर सकती है। ஸ்திரீயானவள் கரு தரிக்க முடியும். तो गर्भधारणा करना ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है। கரு தரிக்கிறது இது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். और जैसे हम देखते हैं कि दोनों स्त्रियां परमेश्वर की स्तुति कर रही है, ரெண்டு ஸ்திரீகளும் தேவனை துதித்து பாடுகிறார்கள். दोनों स्त्रियां गर्भवती है। ரெண்டு ஸ்திரீயும் கரு உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். अक्सर गर्भवती स्त्रियां स्तुति करना चाहिए। ஆகவே என்ன செய்யணும்? கரு தரிச்ச ஸ்திரீகள் துதித்து கொண்டே இருக்கணும். तो जितनी आप स्तुति करोगे गर्भधारणा के समय पे आपके बच्चे ब्लेसेड रहेंगे गर्भ से ही, और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। அவங்க துதித்து கொண்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க குழந்தை இன்னும் அது ஆண்டவருடைய பிளஸ் அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கும். இன்னும் அவங்க அந்த வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். तो बच्चे जब भी जैसे हम देखते हैं यहाँ की जैसे 6वें महीने का प्रेयर हम यहाँ देखते हैं, 6வது மாசத்துல இருக்கிற அந்த பிரேயர் நாம பார்க்கிறோம். हम देखते हैं एलिशबा 6वां महीना था वो जब प्रेग्नेंट थी। उसका प्रेगनेंसी का काल स्वर्गदूत ने खास मरियम को बताया कि उसका 6वां महीना है। எலிசபெத் வந்து 6வது மாசத்துல கரு உண்டாயிருக்கிறார். 6வது மாசம் நடக்கிறது என்று தேவதூதன் மரியாளிடம் சொல்லுகிறார். और हम देखते हैं कि 6वें महीने तक वो बच्चा कंप्लीटली रेडी हो चुका था। 6வது மாசத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தையின் உருவம் முழுதும் வந்து விடுகிறது. और उसे जरूरत थी मसीह की, அவனுக்கு தேவை ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுள்ளது. और इसीलिए मरियम 3 महीना उसके साथ रही। तो मरियम के द्वारा यीशु मसीह जो उसके गर्भ में थे उसके द्वारा मसीह उसके साथ रहा। மரியாளுடைய வயிற்றிலே இயேசுவானவர் இருந்தபடியா 3 மாசம் அவ எலிசபெத் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார். ஆண்டவர் அவளோடு கூட இருக்கிறார். इसलिए देखो 57 वर्ष में लिखा है, இதில் 57வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, एलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। எலிசபெத்துக்கு பிரசவ காலம் நிறைவேறின போது அவள் ஒரு புத்திரனை பெற்றார். हाँ हम देखते हैं दोनों सुरक्षित रहे। ரெண்டு பேரும் நல்ல பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள். अब बूढ़ी देखो, बूढ़ी गर्भधारणा करने के बाद प्रसव पीड़ा में आप उसकी हालत कैसी है। जब जवान लड़की 18-19 साल की, 30 साल की, 22 साल की स्त्री अगर प्रसव पीड़ा में उसकी हालत खराब होती है तो आप सोचो कि वो जो एलिशबा
उठी थी तो उसकी हालत कैसी हुई हो? வாலிப வயது இருக்கும்போது ஒருத்தர் பிரசவ காலத்துல அவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கும்போது வயதான சென்ற எலிசபெத் அந்த நேரத்துல அவர் எப்படி ஒரு பிரசவ காலத்துல இருக்கிறார் என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். लेकिन प्रभु की स्तुति हो, मसीह 3 महीना उसके साथ रहने के कारण माता मरियम के द्वारा इसीलिए प्रसव पीड़ा के समय पर डिलीवरी नॉर्मल हुई, वो भी अच्छी रही, बच्चा भी अच्छा। ஆனால் கன்னிகை மரியம் வாழ்க்கையிலே வயிற்றிலே தேவகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தது போல அவள் எலிசபெத் கூட இருந்தது நிமித்தம் பிரசவ காலம் நன்மையாக நேரிட்டது. और इसलिए बाइबल में लिखा है आइज़ाया 66 में कि प्रसव पीड़ा होने से पहले उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ஆகவே ஏசாயால எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவள் அந்த வயதில் பிரசவ காலம் நேரிடும் போது ஒரு நல்ல ஒரு புத்திரனை அவள் பெற்றெடுத்தாள். इसीलिए जब हम छठे महीने में प्रेयर रखते हैं 6வது மாசத்திலே ஜெபம் வைக்கும் போது ஜெப கூடுகை तो 9 महीने के बाद 9 மாசம் கழிச்சு तो डिलीवरी नॉर्मल होती है, டெலிவரி நார்மலாகவும் दर्द नहीं होता। பீடா இருக்காது, வலி இருக்காது. और जो अक्सर जिनकी छठे महीने की प्रार्थना की है वो स्त्रियाँ ज़्यादा दर्द से बच्चों को जन्म नहीं दिया। இந்த 6வது மாசத்துல ஜெபம் இது வைக்கும் போது அவங்க வந்து அந்த பிரசவ காலத்துல அதிகமான வலி இருக்காது. जैसे दर्द हुआ तुरंत हॉस्पिटल में बच्चा संसार हाथ में आया। जैसे அது வலி வந்த உடனே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நல்ல பிரசவம் எடுக்க தேவன் கிருபை செய்கிறார். जैसे स्त्रियाँ 48 घंटा 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार पीड़ा से जाती है। சில ஸ்திரீகள் என்ன அந்த பிரசவ காலத்துல சீக்கிரத்துல டெலிவரி ஆகாதபடி 2 நாள் 3 நாள் வலியில துடித்து கொண்டே இருப்பார்கள். दर्द से कराती है, வலியில துடித்து கொண்டே இருப்பார்கள். कभी कभी 24 आवर्स वो यानी 24 घंटा कभी कभी वो दर्द से गुजरती है। 24 மணி நேரம் அந்த வலியை தாங்கி கொண்டே இருப்பார்கள். किसी को 7 घंटा, किसी को 8 घंटा, 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வலி இருக்கும். लेकिन प्रभु की स्तुति हो जो हमारे प्रभु की ऐसी इच्छा है कि उसकी बेटियां दर्द से न गुजरे। என்னுடைய சித்தம் என்னவென்றால் அந்த பிள்ளைகள் அந்த வலி இல்லாமல் பிரசவ காலத்திலே வர வேண்டும். जैसे प्रसव पीड़ा होने से पहले उसने एक सुंदर बेटे को आप कोई लाइन ध्यान से पढ़ो, प्रसव पीड़ा होने से पहले அந்த வார்த்தையை நீங்க கரெக்டா பிரசவ காலம் நிறைவேறின போது அவள் ஒரு புத்திரனை பெற்றெடுத்தாள். बच्चे को जन्म दिया, ஒரு புத்திரனை பெற்றெடுத்தாள். तो इसलिए प्रभु की यही इच्छा है। அவளுடைய இதே சித்தம். तो बच्चा ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் அது தேவனுடைய ஈவு. 127 में लिखा है कि बच्चे देखो, बच्चे तो यहोवा के दिए हुए दान है। சங்கீதம் 127 எழுதப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய ஈவு, அது கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம். देखो यहोवा की ओर से मिला हुआ ये गिफ्ट है। இது தேவனால் அருளப்பட்ட ஈவு. वहाँ लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। கற்பத்தின் கனி தேவன் அருளுகிற ஈவு. तो ये परमेश्वर की ओर से है, இது தேவன் தருகிற ஈவு. तो इसीलिए सारे इसमें आनंद ले और परमेश्वर की महिमा करे और इन दिनों में परमेश्वर के संगति में रहे। जैसे एलीशिबा और मरियम परमेश्वर की संगति में रहे, इसीलिए दोनों की डिलीवरी सेफ हुई। இந்த நாட்களிலே நாம் அதிகமாய் தேவனிடத்தில் தன்னுடைய நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். அப்போ தேவன் பாதுகாப்புடன் ஒரு பிரசவ காலத்தில் நமக்கு ஒரு புத்திரனை அருள்வார். और मेन बात क्या है मालूम, परमेश्वर ये चाहता है कि गर्भ से ही जो हमारे मसीह लोग हैं, हमारे मसीह लोगों के जो बच्चे हैं, गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए, उन पर परमेश्वर की आशीष रहे, धर्म ठहरा रहे। தேவனுடைய சித்தம் குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போதே தேவனுடைய ஆவியினாலும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். आप इस वचन को भजन संहिता 103 में पढ़ सकते हैं, 17वें वचन में। இந்த வசனத்தை சங்கீதத்தில் 103 17 நீங்க 17 வசனத்துல படிக்க முடியும். इसलिए पौलुस कहता है ஆகவே பவுல் சொல்கிறான் गलातियों की पत्री में கலாத்திய புஸ்தகத்திலே अध्याय 1 में முதல் அதிகாரம் और उसका 14 और 15 में कहा है 14-15 வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मैं जब गर्भ में था, நான் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது गलेशियंस கலாத்தியர் कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गलेशियंस கலாத்தியர் अध्याय 1 கலாத்தியர் முதல் அதிகாரம் और उसका 14 और 15 முதல் அதிகாரம் 14-15. वहाँ लिखा है मैं जब माता के ही गर्भ में था तभी से मुझे ठहराया और मुझ पर अनुग्रह किया और अपनी सेवा के लिए बुला लिया। அப்படி இருந்தும் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் என்னை பிரித்தெடுத்து தம்முடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன். एलीशिबा का 6वां महीना था, उसके गर्भ के बच्चे को किसने बुलाया था? सेवा के लिए ना। எலிசபெத் 6வது மாசத்துல இருக்கும்போது அவருடைய கர்ப்பத்தின் கனியை எதற்காக அழைக்கப்பட்டது?
ஊழியம் செய்வதற்காக बराबर है? प्रभु के लिए मार्ग तैयार करे। அவன் தேவனுக்காக வழியை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக उसका नाम क्या रखा गया? அவருடைய பேர் என்ன வைக்கப்பட்டது? எலிசபெத் புத்திரனின் பேர் என்ன வைக்கப்பட்டது? यूहन्ना। யோவான். बराबर है? तो उसको पहले क्यों जन्म दिया? எதுக்காக அவன் முதல்ல பெற்றெடுத்தான்? पहले क्यों आया? गर्भ से क्यों चुना गया? ஏன் கர்ப்பத்திலே அவனை தெரிந்தெடுத்தான்? क्योंकि प्रभु के लिए मार्ग तैयार है। அவன் ஆண்டவருக்காக ஒரு வழியை तो ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக. उसी रीति से आपके गर्भ के जो बच्चे हैं, அப்படியே உங்களுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள், अभी तो अभी के गर्भ में नहीं, अभी आप जन्म हो चुके हैं, நீங்க இப்போ கர்ப்பத்தில் இல்ல, இப்ப நீங்க வந்துட்டீங்க. लेकिन आपके बच्चे मसीह बच्चे हैं। ஆனா உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். बराबर है? जब आप प्रेग्नेंट थी तब आप मसीह में थी ना? நீங்க பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தீங்கல்ல. आपके बच्चे मसीह बच्चे हैं। உங்க பிள்ளைகள் எல்லாமே கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள். उनका जन्म क्यों हुआ? அவங்களுடைய பிறப்பு எதற்காக உண்டானது? मुख्य उद्देश्य क्या है? அவங்க ஆண்டவருடைய திட்டம் என்ன, நோக்கம் என்ன? हमारा यीशु आने वाला है நம்முடைய இயேசுவானவர் வரப்போகிறார். और आपके बच्चों की ड्यूटी यीशु के लिए मार्ग तैयार करना। உங்க பிள்ளையுடைய டியூட்டி வேலை என்னன்னா ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தப்படுத்தணும். ये सेवा दी है। இந்த வேலையே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். आज हम वाल्टर के और रजनी के गर्भ के बच्चे के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। இன்னைக்கு தம்பி வால்டர், ரஜினி சிஸ்டர் அவர்களுடைய பிள்ளைக்காக நாம் அங்க கூடி வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया है। அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். जो बच्चा दिया है वो उसका जन्म का मुख्य उद्देश्य माँ के गर्भ से उसे क्यों बुलाया है? ताकि सेवा करे। அந்த குழந்தை பாக்கியம் ஏன் கொடுத்திருக்கிறார்? இந்த கர்ப்பத்திலே தேவன் ஒரு நோக்கத்தை திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். அவன் தேவனுடைய வேலை செய்யும்படியாக. ऐसे पौलुस नहीं कहता है, பவுலஸ் சொல்லுகிறார், परंतु यिर्मयाह भी कहता है। எரேமியாவும் சொல்லப்படுகிறது. यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन भी पढ़ोगे। எரேமியா முதல் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, पढ़ो जेरेमिया, எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 और उसका 5वां वचन। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसका 5वां वचन। गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். நீ கர்ப்பத்தில் இருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்த பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். तो परमेश्वर ने उसे गर्भ से चुना। ஆண்டவர் அவனுடைய கர்ப்பத்திலே அவனை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने क्यों गर्भ से चुना? ताकि सेवा कर सके। கர்ப்பத்திலே ஆண்டவர் ஏன் அவனை தெரிந்தெடுக்கிறார்? தேவனுடைய வேலை செய்யும்படியாக. तो अभी जो रजनी के गर्भ के बच्चा जो है, ரஜினி சகோதரனுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை, तो वाल्टर का बच्चा है, அது வால்டருடைய குழந்தை. लेकिन वो बच्चा मसीह का है। ஆனால் அந்த குழந்தை யாருடைய குழந்தை? ஆண்டவருடைய குழந்தை. मसीह ने उनके हाथ में दिया है। ஆண்டவர் அவங்க கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். तो जैसे यूहन्ना को जकरिया के और यीशुआ के हाथ में दिया, யோனாக்கு ஜகரியா எலிசபெத் கையிலே ஆண்டவர் அந்த குழந்தை கொடுத்திருந்தார். उन्होंने सचमुच बहुत अच्छा बढ़ाया, इतना अच्छा बढ़ाया कि प्रभु के लिए वो तैयार किया। அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மகனை ஆண்டவருக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். माँ बाप की ड्यूटी यही है कि वो गर्भ से ही अपने बच्चे को मसीह की सेवा के लिए तैयार करें। அம்மா அப்பாவுடைய தாயாருடைய பெற்றோருடைய காரியமே இதுதான். கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது பிள்ளைகளை தேவனுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். जैसे वो गर्भ का बच्चा मरियम यीशुआ का गर्भ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, எப்படி எலிசபெத்தின் வயிற்றிலே அந்த குழந்தை ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததோ, उस बच्चे ने क्या किया? यीशुआ को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, அந்த குழந்தை எலிசபெத்தையும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பிட்டது. है ना? और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्तुति करने लगी। பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி அவர் துதிக்க ஆரம்பித்திருந்தார். तो उन्होंने अच्छी रीति से उसे बढ़ाया। அவங்க வந்து நல்ல ஒரு காலத்திலே அந்த பிள்ளையை வளர்த்தார்கள். एकलौता बेटा है बोलकर उसे गलत राह पर नहीं लेके गए। ஒரே ஒரு புத்திரன் என்று ஒரு வீணான காரியத்திலே கொண்டு போகவில்லை. उसका जन्म किस कारण हुआ है ये बार बार उसे बताया गया। உன்னுடைய பிறப்பு எதற்காக ஆனது என்று திரும்ப திரும்ப அந்த பெற்றோர்கள் அவனிடத்தில் சொன்னார்கள். थोड़ा समय आपको और एक फैमिली के बारे में बताती हूँ। கொஞ்ச நேரம் இன்னொரு ஃபேமிலியை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன். एक है शिमशोन की फैमिली। சிம்சோனுடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறோம். शिमशोन जानते हैं ना? சிம்சோன் தெரியுங்களா? न्यायों की पुस्तक में जजेस में है। நியாயாதிபதிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. स्ट्रांग, நல்ல பலசாலி, मस्त स्ट्रांग, நல்ல பலசாலி, परमेश्वर का सेवक है वो। ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன் தாசன். उसके माँ बाप भी बूढ़े थे, அவங்க अम्मा अप्पाவும் वयது சென்றவர்கள். लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूत भेजकर कहा कि तुम्हें बेटा होगा, தூதனை அனுப்பி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொன்னார்கள், உனக்கு ஒரு புத்திரன் உண்டாகும், वो नाजिर होगा।
உனக்கு புத்திரனாக அவன் நாசரேத் என்னப்படுவான். तो इसलिए उसे बहुत ऐसा उसे बढ़ाना है और परमेश्वर की सेवा कराना है. அந்த அவனை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அவனிடத்தில் தூதனை வைத்து கற்றுக் கொடுத்தார். लेकिन हुआ क्या? ஆனால் என்ன நடந்தது? माता पिता इतने खुश हुए उस बच्चे के जन्म से, वो भूल ही गए कि उसका जन्म किस लिए हुआ है. பெற்றோர்கள் இவ்வளவு சந்தோஷம் அடைந்தார்கள், ஆனால் இதை மறந்து விட்டார்கள் இவருடைய பிறப்பு எதற்காக உண்டானது. उसे ऐसा बढ़ाया, उसको कुछ भी नहीं बताया कि बाबा तुझे परमेश्वर की सेवा के लिए बढ़ाया, जो बनाया गया है, जन्म हुआ है. வளர்க்கும் போது அவனை தேவனுடைய திட்டத்தை குறித்து அவனிடத்தில் சொல்லவே இல்லை. उसे बताया गया था कि गंदी वस्तुओं से कोई वस्तु नहीं खाना है. எந்த ஒரு அசிங்கத்தை நீ தொடக்கூடாது என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. उसी ने मारे हुए जो लायन शेर था, शेर में जो मद का छत्ता था वही उसने खाया, अशुद्ध वस्तु मुंह में डाला. அவன் அந்த அசிங்கத்தை கையை தொட்டான், அந்த மிருகம் சிங்கத்தை அதில் தேன் கூட்டையை அதை எடுத்து அவன் சாப்பிட்டான். दूसरा उसका पहले से लड़की से शादी करना चाहा, जबकि मसीह ने, एक यहूदियों ने, इस्राएल से शादी करना है, अन्य जातियों से, अविश्वासी से नहीं. அந்நிய ஜாதியிடத்தில் அவன் திருமணம் நடக்கப்படுகிறது. ஒரு பெலிஸ்திய ஸ்திரீயை அவன் விவாகம் பண்ணுகிறான். वो भी किया. அதையும் தவறு செய்தான். फिर वो एक वेश्या के पास गया. அப்புறம் ஒரு வேசியிடத்தில் போகிறான். फिर हम देखते हैं कि वो तमार दिलेला से प्यार में मोहित हो गया. தினால் அந்த ஸ்திரீயிடத்தில் அவளை சிநேகிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ये सब वो ऐसा क्यों कर पाया? சிம்சன் ஏன் இந்த காரியத்தை எல்லாம் செய்தான்? माँ बाप ने इतना लाड किया, उसे समझाया ही नहीं कि उसका जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है. அம்மா அப்பா தேவனுடைய காரியத்தை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. தேவனுடைய திட்டம் நோக்கம் என்னவென்று அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை. उसे क्यों जन्म दिया है, उसे क्यों इस पृथ्वी पर इस माता पिता के हाथ में दिया है. ஏன் நீ பூமியிலே வந்திருக்கிறவோ, ஏன் எதற்காக பெற்றோர்கள் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அதை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. लेकिन देखो जकरिया और इलिशिबा ने यूहन्ना को इसी रीति से बढ़ाया. ஆனால் சகரியா எலிசபெத் தன் பிள்ளைகளை தேவனுடைய திட்டத்தின்படியே வளர்த்தார்கள். यूसुफ को और मरियम को भी यही बताया गया कि इस बेटे का जन्म क्यों हो रहा है. யூசுப் மரியம் பெற்றோர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இந்த பிள்ளையின் பிறப்பு எதற்காக உண்டாயிருக்கிறது. तो उसी रीति से उन्होंने भी एक माता पिता होने के कारण उन्होंने भी यीशु को ऐसा ही बढ़ाया कि परमेश्वर की सेवा कर सके. பெற்றோர்களாகிய யூசுப் மரியமும் இயேசுவானவரை அப்படிதான் வளர்த்தார், பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கும்படியாக. माता पिता होना ये बहुत अच्छी बात है. தாய் தகப்பனா இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல காரியம். बहुत खुश हो जाते हैं. ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். ये बड़ी जिम्मेदारी है. ஏனென்றால் இது பெரிய ஒரு பொறுப்பு. और ये सिर्फ जन्म होने के बाद से नहीं, बाइबल हमें बताता है गर्भ से ही कि आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने उस दिए हुए परमेश्वर के इस बालक के विषय पर जागरूक रहे. பிள்ளை பெற்ற பிறகுதான் நமக்கு பொறுப்பு வருகிறது இல்லை, பிள்ளை கர்ப்பத்தில் உருவாகும் போதே அந்த பொறுப்பு நமக்கு வேண்டும். இது தேவனுக்கு நியமித்த காரியத்தில் நடத்த வேண்டும். और प्रियो परमेश्वर आपसे हिसाब भी लेगा. பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை குறித்து தேவன் உங்களிடத்தில் கணக்கு கேட்பார். जो वो आपको पॉइंट देता है उसका हिसाब लेगा. எந்த இது கொடுக்கிறாரோ அதுக்குள்ளேயே கணக்கு கேட்பார். पूछेगा अगर आपने अपने बच्चों को खो दिया, मसीह नहीं बनाया, सेवक नहीं बनाया, सेवा नहीं कर रहे, तो वो पूछेगा तेरा बच्चा किधर है, मैंने तुझे दिया था, वो कहाँ है. உங்க பிள்ளைகள் தேவனுடைய பாதையில் நடக்கவில்லை, தேவனுடைய காரியத்தை செய்யவில்லை, இப்போ ஆண்டவர் பெற்றோர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்பார். உங்க பிள்ளையை நான் கொடுத்தேன், நீங்க அந்த பிள்ளைகள் எங்க இருக்கிறது என்று. मैं ये नहीं कहती कि वो आप उसे डॉक्टर मत बनाओ. நான் இதை சொல்லுவேன் कि நீ உங்க பிள்ளைகளை டாக்டர் பண்ண வேண்டாம், इंजीनियर मत बनाओ, இன்ஜினியர் படிக்க வைக்காதீங்க, पृथ्वी पर पढ़ाई मत करने दो. இந்த பூமியில நீங்க படிப்பை தராதீங்க என்று நான் சொல்லவில்லை. अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दो. உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுங்கள். अच्छा से अच्छा इस पृथ्वी पर अगर कोई राज्य स्थान अधिकार भी करता होगा, गवर्नमेंट काम भी करता होगा या कोई स्थान भी होगा तो भी वो ले सकता है. நல்ல உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உங்கள் பிள்ளைகள் வருகிறது தவறு கிடையாது. प्रभु की सेवा भी करना है. ஆனால் அதோடு கூட தேவனுடைய வேலையும் செய்யணும். आपका जन्म यही है कि हुआ कि आप सेवा करना ही है, आपके बच्चों ने सेवा करना ही है. अभी मेरे पास हम लोग की फैमिली एक सेवक है, तो हमारी बच्चे सेवा करना ही है. உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய கடமை எப்படி வேலை செய்தாலும் தேவனுடைய வேலை செய்ய வேண்டும். எப்படி நாங்கள் பாஸ்டர் அதே மாதிரி எங்கள் பிள்ளைகளும் நாங்களும் தேவனுடைய வேலையை செய்கிறோம். नहीं तो पास्टर लोग की फैमिली को बोला जाता है तो वचन सिखाते हैं, देखो देखो इनके बच्चे देखो सेवा नहीं करते, देखो देखो इनके बच्चे देखो कैसे रहे, इनके बच्चे देखो कैसे वचन में ध्यान भी नहीं देते, उठ के चले जाते. அல்லது மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க பாஸ்டர் அம்மா 2 பேரும் உண்மையை பார்க்குறாங்க, ஆனால் இவங்க பிள்ளைகள் பாருங்க வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க, இவங்க வசனத்தை கேட்கவே மாட்டாங்க, எப்படி எழுந்து போகிறார்கள் என்று அப்படி கேவலமாக பேசுவார்கள். अगर वो लेट आते हैं चर्च में, அவங்க சர்ச்சில் லேட் வந்தா பிள்ளைகள் देखो देखो इनके बच्चे देखो कितना लेट आ गए. இவங்க பிள்ளைகளே இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்கு. पास्टर फैमिली तो
टाइम पे आती बच्चों को बराबर बिल्कुल सिखाया नहीं। பாஸ்டரோட மனைவி கரெக்டா டைமாக வந்திருக்காங்க, பிள்ளைகளுக்கு டைம் இது பண்ணது கத்தி கொடுக்கவில்லை. तो ये आपको जैसे हम देखते हैं कि एलिशिबा ने और जकरिया ने उस बच्चे को, अभी वो तो बूढ़े हो गए, हम देखते हैं कि वो तो मर भी गए। எலிசபெத்தும் ஜகரியாவும் வயது சென்றாயிட்டாங்க, அவங்க இறந்து விட்டாங்க. ஆனாலும் பிள்ளையை ஒழுங்கான வழியிலே நடத்தினாங்க. मरने से पहले उन्होंने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया कि यूहन्ना जंगल में रहता था लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं था। மரிக்கிறதுக்கு முன்பதாக தன் பிள்ளையை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டாங்க. யுவன்னா இது காடுகள் மத்தியில இருந்தாலும் வனாந்தரத்தில் இருந்தாலும் அவன் ஆண்டவரை விடவில்லை. तो जो एक सिखाने का समय था, बढ़ाने का समय था, पालन पोषण करने का समय था, प्रभु के बारे में सिखाना था, वो सब जकरिया और यीशुआ के द्वारा हुआ। கற்றுக் கொடுக்கிற நேரத்திலே பயிற்சிக்கு நேரத்திலே ஜகரியாவும் எலிசபெத்தும் கரெக்டாக செய்தார்கள். तो मैं आपको अभी जो वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 में, இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் ரோமியோவின் புஸ்தகத்திலே 8வது அதிகாரம். 8 अध्याय और उसका ரோமியோவின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 29-30 29 30 29 और 30 29 30 सब सुन रहे हैं? बाहर सगळे ऐकतात आहे ना? सगळे कळतंय ना? रोमन्स चैप्टर 8 29-30 ரோமர் 8 29 30 जिन्हें उसने पहले ही जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया और उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। நம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதல் பேரானவராக இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரன் சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்கள் நீதிமான்களாக இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தும் இருக்கிறார். तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके बच्चों को कौन सा स्वरूप लाना है? உங்க பிள்ளை ஆண்டவருடைய வசனத்தின்படி உங்க பிள்ளைகள் எந்த சாயல் அடைய வேண்டும்? प्रभु का, தேவனுடைய சாயல், के पुत्र का। தேவனுடைய சாயல் அடைய வேண்டும். यही आपका ज्यादा ड्यूटी है। माता पिताओं का काम ये है कि आपको जो बच्चा दिया है उसको गर्भ से ही और गर्भ के बाद भी क्या करना है? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ाना है। பெற்றோருடைய கடமை என்ன? கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது கர்ப்பத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிறகும் பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை தேவனுடைய பாதையிலே நடத்தி செல்ல வேண்டும். स्वरूप यानी कैसे? जैसे आपके बच्चे आपके जैसे ही दिखेंगे। தேவனுடைய சாயலாக அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சாயலாக தான் இருப்பார்கள். आपके बच्चे हैं, ஏனென்றால் உங்களுடைய குழந்தைகள் आपके जैसे ही दिखेंगे। உங்களை மாதிரி தான் தெரிவார்கள். लेकिन उनका जो चलना, उनका जो बोलना, उनका बैठना, उनका व्यवहार, उनकी चाल चलन सब मसीह के जैसा होना चाहिए। उनके सब इसमें मसीह दिखना चाहिए। ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சிலே நடக்கையிலே அவங்க காரியத்திலே ஆண்டவருடைய சாயல் வெளிப்பட வேண்டும். तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी गर्भ में जो बच्चे दिए हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ஆண்டவர் ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார், கர்ப்பத்தில் குழந்தையை நாம் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் तो என்று. आज हम रजनी के छठे महीने के इसमें हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि उसकी डिलीवरी 3 महीने में प्रभु उसको संभाले। और भी क्योंकि अभी उसको ज़्यादा वजन लगेगा, उठना बैठना तकलीफ होगा, तुरंत नहीं उठ पाएगी, उसको भाग देना पड़ेगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी। इसमें उसका मिसकरेज नहीं हो, इस विषय के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। இந்த 6வது மாசத்துல தான் இதிலிருந்து 9ஆம் மாசம் வரை சகோதரி ரஜினி சிஸ்டரை ஆண்டவர் தன்னுடைய பலத்தினாலும் தெய்வீக பாதுகாப்போடு அவளை வழிநடத்த வேண்டும் என்று நாம் எல்லாரும் அதுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். अभी उसको एकदम हेवी लग रहा है, இப்போதான் அவளுக்கு மீன்ஸ் ரொம்ப இதா இருக்கும், கஷ்டமாக இருக்கும். किसी का पेट इतना नहीं दिखता है, उसका ज़्यादा नहीं दिखता है। तो சிலருடைய வயிறு அவ்வளோ தெரியாது, சிலருடைய வயிறு தெரியும். आगे जाके और भी होगा, இன்னும் போக போக இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும். लोग देखेंगे, மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள். कभी किसी की बुरी नजर न लगे, என்னுடைய யாருடைய தீமையான காரியங்கள் தொடாதபடி. आंखों की लस्ट ऑफ आइज एंड लस्ट ऑफ स्पिरिट होती है जो कभी कभी मनुष्य को लगती है, எந்த ஒரு துஷ்டனுடைய அல்லது மனிதனுடைய எந்த ஒரு ஆவிகள் அவளை தொடாதபடி. तो वो
न लगे, அது தொடாதபடி प्रभु के हाथ में इस फैमिली को देंगे। தேவனுடைய கரத்தில் இந்த குடும்பத்தை ஒப்படைப்போம். तो बच्चा भी प्रभु दिया है, तो प्रभु उनका उत्पन्न बढ़ाए, குழந்தை கொடுத்திருக்கிற குழந்தையின் வளர்ச்சி பெருகி கொண்டே இருக்க வேண்டும். प्रभु उसको और भी आशीष दे, ஆண்டவர் இன்னும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாக, प्रभु पूरा करे, தேவைகள் சந்திக்கும்படியாக. और जैसे हम देखते हैं कि इलिशबा ने जो बच्चे को जन्म दिया, எலிசபெத் புத்திரனை பெற்றெடுக்கும் போது तो वहाँ ऐसा लिखा है, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது 58 में लिखा है, 58 लिखा है कि उसके पड़ोसी, तो बढ़कर के जो पड़ोसी, फिर कुटुंबी, यानी उसकी जो फैमिली है, सब फैमिली, यह सुनकर प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है। वो लोग उनके साथ क्या किया, आनंद किया। तो वैसे इनके दोनों की जो फैमिली है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, और उनके मेन रिलेटिव्स कौन है, मेन रिलेटिव्स हम मसीह लोग। 58 வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, அயலத்தாரும் 10 ஜனங்களும் கேள்விப்பட்டு அவளுடனே கூட சந்தோஷப்பட்டார்கள். அப்ப ஆண்டோட பிள்ளைகளாக நாம் அவளுடைய ரிலேஷன்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த காரியத்திலே அவளுடனே நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும். चर्च के लोग वही मेन रिलेटिव्स होते हैं, சர்ச்ல இருக்கிறவங்க தான், அவங்க தான் அவங்களுடைய ரிலேஷன், क्योंकि वही फैमिली है हमारी, அதுதான் நம்மளுடைய குடும்பம். पहली फैमिली हमारी वही है, அதுதான் மெயின் குடும்பம், நம்மளுடைய சர்ச் ஃபேமிலி தான். बाद में हमारा ब्लड का जो फैमिली है, அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள். हम अक्सर हमारे ब्लड के जो जिसे हमारा रिलेशन है, हमारे भाई बहन, उनको हम प्रथम स्थान देते हैं। ஆனா நம்ம என்ன தவறு செய்கிறதுனா, நம்மளுடைய பிளட் ரிலேஷன் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு முதல் ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறோம். लेकिन हम चर्च जो हमारी फर्स्ट फैमिली, जो जिस प्रभु के लहू के द्वारा हम सब भाई के, प्रभु यीशु के भाई बन गए हैं, ये हमारी फैमिली है। ரசத்தால் கழுவப்பட்ட முதல் குடும்பம் நம்முடைய சபையில் இருக்கிற அனைவரும் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியா உள்ளது. तो वो सबने आनंद, அவங்க எல்லாரும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். तो इस बच्चे के जन्म के बाद हम सब आनंद होंगे। அந்த குழந்தை பெற்றெடுக்கும் போது நாம் எல்லாரும் சந்தோஷம் அடைய வேண்டும். इसकी खुद की फैमिली, वर्ल्डर की भी फैमिली, रजनी की भी फैमिली, चर्च की फैमिली, अभी प्रभु की दया से उनको 2 चर्च मिला। வால்டர் பிரதருடைய ஃபேமிலி, ரெஜி சிஸ்டருடைய ஃபேமிலி, அப்படியே 2 சர்ச் ஃபேமிலி எல்லாரும் சேர்ந்து. ये तो हम 2 चर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि संसार में, लेकिन हमारी चर्च एक ही है, प्रभु का चर्च, उनका चर्च हमारा चर्च ऐसा हमारा नहीं है, उनका भी चर्च प्रभु का चर्च है, हमारा भी चर्च प्रभु का ही चर्च है। हमारा दोनों चर्च का लीडर प्रभु है, पवित्र आत्मा ही चला रहा है। சொல்லப்படும் போது வார்த்தையினால் உலகத்தில் அப்படி சொல்கிறோம் 2 சர்ச், ஆனால் ஒரே சர்ச் தான். இந்த சர்ச்சை நடத்துவது ஆண்டவர் இயேசுவானவர். तो सब प्रभु, हमारा प्रभु ही है, எல்லாமே இயேசு தான். प्रभु ने कहा मेरी कलीसिया, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது என்னுடைய சபை. प्रभु ने उसको अपनी कलीसिया कहा। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது என்னுடைய சபை. इसलिए अपने चर्च को कभी भी बोलना मेरा चर्च, இது தன்னுடைய சர்ச்சை நம்ம என்ன சொல்லணும், இது என்னுடைய சபை. प्रेम करना अपने चर्च को, சபையை நேசிக்க வேண்டும். अपने चर्च को हर्ट नहीं करना, சபையை துக்கப்படுத்தக்கூடாது, छोड़ के नहीं जाना, விட்டுட்டு போகக்கூடாது, पकड़ के रखना, பிடித்து கொண்டே இருக்கணும், ध्यान பார்க்க வேண்டும், கவனம் கொடுக்க வேண்டும், सपोर्ट करना, உதவி செய்ய வேண்டும். जो चर्च के लीडर है, पास्टर है, उनको प्यार करना, उनके आधीन रहना। சர்ச்ல இருக்கிற யார் ஊழியம் செய்கிறவங்க, சர்ச் பாஸ்டர் அம்மா எல்லாரையும் நேசிக்க வேண்டும், அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க வேண்டும், और उनकी जरूरतों को भी पूरा करना। அவங்க தேவைகளும் நீங்க சந்திக்கணும். जो प्रभु के सामने आपके लिए मध्यस्थी करते हैं, ஏனென்றால் அவங்க ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உங்களுக்காக மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார். आप उनको हर्ट करोगे तो वो प्रभु के सामने बोलेंगे प्रभु, तो प्रभु देखेगा। அவங்களை நீங்க துக்கப்படுத்தும் போது, அவங்க மனசு துக்கப்படுத்தும் போது அதை ஆண்டவர் பார்க்கிறோம். इसलिए प्रभु का चर्च, இது ஆண்டருடைய சபை. यहाँ लिखा है कि सबने आनंद किया, எல்லாரும் ஆனந்தம் அடைந்தார்கள். तो आज प्रभु का वचन भी यही कहता है कि जब उसके भी दिन पूरे हो जाएंगे तो सब क्या हो जाएंगे, है ना, और भाई फैमिली आनंदित हो जाएगी, डायना आनंदित हो जाएगी, है ना, डायना की मम्मी आनंदित हो जाएगी। अभी देखो वाल्टर और रजनी तो आनंदित हो गई, है, वो तो उनका बच्चा है, வால்டர் பிரதரும் ரஜினி சிஸ்டரும் சந்தோஷம் அடைவாங்க, ஏனென்றால் அவங்களுடைய குழந்தை. हम उनको गुदगुली करके आनंद करो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। நீங்க குறிச்சிட்டு அவங்கள சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்க சந்தோஷம் அடைங்க. लड़की होने पे कोई लोग ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर बोलता है लोग लड़की हो गई तो பெண் குழந்தை பிறக்கும்போது சிலருடைய மூஞ்சி இப்படி ஆகிவிடுகிறது. अरे बाबा हुई था, பெண் பிள்ளை பெற்றெடுத்தாங்க. वो भी प्रभु की दया है ना। குழந்தை தந்திருக்கிறது ஆண்டவருடைய ये ஈவு. तो प्रभु जिस पर कृपा करता है, जो देना है हमारे हाथ में है।
ஆண்டவர் என்ன திட்டம் இருக்கிறதோ அதை அவர் செய்வார். அது நம்முடைய கருத்தில் இல்லை. साइंस कुछ भी बोलो, वाई एक्स कुछ भी मिला, ये हुआ वो ऐसा, ये परमेश्वर की ओर से है. சயின்ஸ்ல எத்தனை இது காரியம் வந்தாலும் அது நடக்காது. இது தேவனுடைய ஈவு. परमेश्वर कहता है मुझे मेरी ऐसी इच्छा होगा इसको बेटा हो. என்னுடைய சித்தம் இவனுக்கு பையன் ஆகணும், आपको बेटा होगा. அவனுக்கு புத்திரன் ஆகும். बहुत लोगों को लड़की चाहिए प्रभु उनको लड़का लेता है. சிலவங்க எனக்கு பெண் பிள்ளை கேட்பாங்க, ஆனா அங்க பையன் கொடுக்கப்படும். और जिसको लड़का चाहिए उसको प्रभु बोलता है नहीं मैं इसको लड़की दे. யாருக்கு பையன் வேணும் சொல்லுவாங்களோ அங்க பெண் பிள்ளை கொடுக்குறாங்க. जो भी दिया है प्रभु ने दिया. ஆனா எதை கொடுத்தாலும் குழந்தை தேவன் அருளுகிற ஈவு. ஆனா நம்ம சந்தோஷம் அடையணும். माँ बाप आनंद करते ही है. பெற்றோர்கள் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். जिनको इसका कीमत नहीं होता वो लोग ऐसे थोड़े से குழந்தை குறித்து யாருக்கு ஒரு காரியம் தெரியாமல் இருக்கிறதோ அவங்க கொஞ்சம் துக்கத்தோடு இருப்பாங்க. लेकिन हम जैसे देखते हैं कि उसके कुटुंब, उसके पड़ोसी, उसके सहेलियां, उसके रिश्तेदार सब आनंदित हुए. இங்க எத்தப்பட்டிருக்கிறது அயலத்தார், எல்லாருடைய தோழிகள், எல்லா நண்பர்கள் எல்லாருமே சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். वैसे ही इनके भी प्रसव पीड़ा रजनी के होने के बाद प्रभु में जो बच्चा परमेश्वर देगा हम सभी आनंदित हैं. பிரசவ காலம் நிறைவேறும் போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற குழந்தையை பார்த்து நாம் அனைவரும் ஆனந்தம் அடைய வேண்டும். हालेलुया. हालेलुया. करेंगे हम प्रार्थना. ஜெபிப்போம். आ जाओ वोल्टर रजनी को लेकर आ गया था. अच्छा आप सेवा कराया प्रभु सेवा के लिए बुलाया है. இந்த பாட்டின் அர்த்தம் என்னன்னா தேவன் என்னை ஊழியத்துக்காக அழைத்திருக்கிறார். और मैं सेवा के लिए आया हूँ. நான் ஊழியத்துக்காக வந்திருக்கேன். और उसमें लिखा है कि यीशु जो हल जोता है ना, हल पे यीशु मसीह एक बैल की नाई ऑलरेडी है. அந்த நிலம் உழுகிற அந்த காரியத்துல தேவன் ஒரு அந்த இது மாதிரி இருக்கிறார். उसके साथ में भी एक दूसरा बैल बोलकर प्रभु तेरे साथ जुट रहा हूँ और मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ, खेती करने के लिए हल चला रहा हूँ. அந்த உழுவுகிற இதுல நானும் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன், அதுல நானும் உங்க கூட இணைந்து அந்த இடத்தை நான் இது பண்ணுகிறேன் என்று அந்த பாட்டின் அர்த்தம். वैसे आज तुम दोनों को भी सेवा के लिए बुलाया है. அப்படியே ஆண்டவர் உங்க ரெண்டு பேரையும் ஊழியம் செய்ய அழைத்திருக்கிறார். बच्चे को प्रभु के लिए तैयार करना. இந்த பிள்ளையை ஆண்டவருக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தணும். तुम्हारा प्रभु यीशु और हमारा प्रभु यीशु आ रहा है. அவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். तो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें. ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தப்படுத்தணும். लोगों को सुसमाचार सुनाकर यीशु के लिए तैयार करें. ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தணும். चर्च में एज अ बेस्ट लीडर बोलकर सेवा करें, सेवक बोलकर खड़े रहे. सेवक चर्च में சர்ச்ல ஒரு நல்ல ஊழியம் செய்கிற மகனாக மகளாக இருக்க வேண்டும். भावशाली सेवा करें. நல்ல ஊழியம் செய்ய வேண்டும். उस सेवक को तैयार करना आप दोनों का. ஆண்டவர் கொடுக்கிற குழந்தையை ஆயத்தப்படுத்துறது உங்க வேலை. हालेलुया. हालेलुया. तैयार है ना आप लोग? उन लोगों ने कहा हाँ हम तैयार है. तैयार है ना? अभी तुम बोल नहीं सकते, ऑलरेडी बोल चुका है. ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे. अपना हाथ हम प्रभु की ओर इनके और बढ़ाएंगे और हम इनको ब्लेस करेंगे, इनको प्रार्थना करेंगे. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वॉल्टर के लिए प्रभु प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता. क्या ही बड़ा सौभाग्य है कि आपने उसे एक अच्छी पत्नी दिया और प्रभु इनके विवाह से आप खुश हुए, इसलिए आपने उन्हें बच्चे का दान भी दिया. बहुत लोगों को जल्दी बच्चे नहीं होते प्रभु, बहुत साल लगते हैं, लेकिन तूने इस पर कृपा की और प्रभु अब ये 4 इंसानों में जब खड़े होगा तो इसे शर्मिंद से गर्दन नीचे नहीं करना पड़ेगा. लोग पैसा कितना ही नहीं पूछते, 4 इंसानों में पूछा जाता है बच्चे कितने हैं.
वो गर्व से कह पाएगा हाँ मुझे परमेश्वर ने इतने बच्चे दिए। तो प्रभु पवित्र पिता, आपने उनकी उसको 4 इंसानों में इस पृथ्वी पर महिमा बढ़ाई है। जैसे यहाँ भी हमने थोड़े समय पहले रोमियो की पत्री में भी पढ़ा था कि धर्म से बाद में महिमा। तो इसलिए प्रभु इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, और प्रभु ये काम सेवा अब जो प्रभु बहुत अच्छी रीति से करने के लिए मदद करना। अब तो पत्नी को संभाल रहा था, अब तो बच्चे को भी उसे संभालना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ये बड़ी जिम्मेदारी ऑल्टर के ऊपर है। प्रभु बुद्धिमान पुरुष बनकर उसे चलने के लिए मदद करना। पवित्र पिता, आधीन में रहकर प्रभु, तेरे आधीन में रहकर प्रभु पवित्र पिता उसके साथ तेरे नित्य प्रार्थना में लगे रहकर अपने इस कुटुंब को तेरे चरणों में ही बनाए रखने का उसका काम है। ये सेवा करते रहने के लिए सहायता करना, कभी भी शर्तें नहीं देना। प्रभु उसको बहुत आशीषित करना, उसका उत्पन्न बढ़ाना, उसे लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना, आने जाने में हमेशा रक्षा करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना। तो उसकी ढाल, उसका कवच, उसका प्रभु, उसका स्वामी, उसका गडरिया है, उसके साथ सदा रहने वाला उसका पवित्र पिता है। उसे बहुत बहुत आशीषित करना, अनुग्रह के पंखों में उसको सुरक्षित रखना, और तेरी करुणा जो सदा की उस पर बने रहने के लिए सहायता करना। और प्रभु वो और उसका घराना नित्य यहोवा की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद देते, रजनी के लिए प्रार्थना करते, उस पर आपका लहू लगाते प्रभु, उसके घर के ऊपर प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते। प्रभु उसे आशीषित करना, तेरी दासी है, और प्रभु तेरी इच्छा थी कि प्रभु ये भी ये सेवा करे। इसने अपनी सेवा बचपन से कर रही है, लेकिन अब ये भी एक सेवा है प्रभु। पवित्र पिता, ये सेवा के लिए उसने अभी अपने आप को तेरे सामने समर्पित किया है। तेरी सेवा बहुत अच्छी रीति से करने के लिए सहायता करना। उसको अभी समय से तेरी बहुत ज़रूरत है प्रभु, बहुत ज़रूरत है। इसलिए तो उसका साथ न छोड़ना। जैसे तूने कहा ना, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, तो हमेशा उसके साथ रहना, उसको फलद्रुप करना, आशीषित करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकत देना। और खास करके आइज़ाया का वचन में हम उसके ऊपर रखते कि प्रसव पीड़ा होने से पहले उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। तो प्रभु यीशु के नाम से वैसे ही होने के लिए मदद करना। जैसे स्त्रियों को जो श्राप दिया गया है कि वो प्रसव पीड़ा होकर बहुत दर्द से वो बच्चे को जन्म देगी, और पवित्र पिता इस श्राप को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है, क्योंकि यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। और वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ पुरुषों के लिए, वहाँ लिखा है स्त्री और पुरुष सभी के लिए श्रापित हुआ। तो प्रभु इस श्राप को हम कलवरी क्रूस पर डालते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से जो तुम्हें सारा दर्द, सारा कराहना तूने उठाया है, तो इसे उठाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ये जैसे इसके दिन पूरे हो जाएंगे, सुंदर बेटे को तुरंत जन्म देंगे। पवित्र पिता, यही तो मसीहों का स्त्रियों में सबसे बड़ा प्रभु लाभ और आशीष का कारण हम देखते हैं। पूजी में करो, धन्यवाद देते हैं। और रजनी के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसे सियोन की बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसा ही हुआ कि हॉस्पिटल में गई और तुरंत बेटा हुआ, तुरंत लड़की हुई, तुरंत बेटा हुआ, तुरंत बच्चे जन्म दिए, और उन्हें कराना भी न पड़ा। वैसे ही प्रभु इसे भी कराना न पड़ेगा। दर्द होने से पहले, प्रसव पीड़ा होने से पहले उस सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसे आशीषित करना, उसके अंदर डर आने नहीं देना, किसी भी बात से उसका मन विचलित होने नहीं देना, उसका होमोग्लोबिन होमोग्लोबिन कम होने नहीं देना, नॉर्मल रखना प्रभु। और गर्भ में प्रभु खून और पानी बराबर से रखना प्रभु। कभी आगे जाके पानी कम हुआ है ऐसा होने नहीं देना, बच्चे के गले में नाल लटकी हुई है ऐसा होने नहीं देना, बच्चे का पैर नीचे है ऐसा होने नहीं देना। सब कुछ नॉर्मल रीति से जैसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जन्म एक अद्भुत चमत्कार है प्रभु। जन्म होना एक चमत्कार है प्रभु मनुष्य। इसलिए मेरे पिता, एक होने के लिए तो सहायता करना, ये बच्चा तूने दिए इसकी रक्षा करना, कभी गर्भपात होने नहीं देना, रक्षा करना। इस फैमिली को हम ब्लेस करते हैं और इस कुटुंब को आशीषित करते हैं, और आपके पंख में सुरक्षित रहने की प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 यीशु। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से आपका ये पवित्र भवन में बैठी हम सब आपका सामने हम सब मिलकर प्रभु आपको महिमा देने के लिए प्रभु बिजली होटल का फोटो को आप दिलाया प्रभु दोनों के लिए
प्रभु आप बहुत बड़ा गिफ्ट दिया प्रभु बच्चों को प्रभु आप देते हैं प्रभु रक्षा करना गुणों को रक्षा करना प्रभु आरोग्य करना प्रभु कुटुंब आप देता है स्त्री कुटुंब बनाता है संभालता है पुरुष कुटुंब को कबूल करता है कुटुंब चलाता है कुटुंब में शांति लाता है स्त्री को बहुत बुद्धिमती स्त्री घर बनाता है ऐसे प्रभु लो अंत तक एक अच्छा कुटुंब होगी कुटुंब को बढ़ा के देना प्रभु कुटुंब में बहुत आशीष करना और गाँव को आशीष करना तो माँ को आरोग्य में रखना तो माँ बहन लोग सब लोगों को आरोग्य में रखना सबको प्रार्थना जीवन करने के लिए सहाय करना जिंदगी में प्रथम स्थान पर सहाय करना करते संगति करते लोग करना तो हमेशा रक्षा करना तैयार करना आज बहुत था खुशी के दिन में हमारा यीशु अच्छा है हमारा यीशु प्यार है बहुत साल यीशु के लिए सेवा किया यीशु के लिए पैर था यीशु को महिमा दिया यीशु का सेवा किया यीशु नहीं तो और लोगों को एक अच्छा कुटुंब लाइफ दिया वो अच्छा कुटुंब लाइफ देता है वो ये दुनिया में बहुत बड़ा वचन में लिखा है अच्छा स्त्री प्रभु देता है कुटुंब लाइफ प्रभु देता है लेकिन कुटुंब लाइफ संभालने के लिए आना चाहिए लोगों को बुद्धि दियो ज्ञान दियो हमेशा प्रभु लोगों को इच्छा करें यीशु के नाम से पिता के जन्म में प्रार्थना करता हूँ प्रभु धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर प्रभु इस अनुग्रह के दिन के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं आज विशेष करके पिता इस प्रार्थना सभा को हम क्यों नियुक्त किए करके आप पहले से जानते पिता परमेश्वर विशेष करके पिता परमेश्वर वॉल्टर भाई के जीवन में और रजनी सिस्टर के जीवन में जो आपने किए इस बड़े अद्भुत कामों के लिए दिल की गहराई से कलीसिया के सभी लोग मिलकर परिवार और सभी लोग हर एक रिश्ते हर एक दोस्त हाँ पिता और कलीसिया के हर एक सदस्य एक साथ मिलकर प्रभु पहले हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं ओ प्रभु गर्भ का आशीष परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है करके पिता परमेश्वर इस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं और विशेष करके पिता आपके वचनों को हमने सुना है पिता परमेश्वर जैसे जगरिया और एलिजाबेथ ने पिता परमेश्वर दिए हुए बच्चों को पिता आपके भीतर पालन पोषण किया पिता परमेश्वर और आपके आने के लिए वो मार्ग तैयार करने के लिए उस बेटे को जैसे अर्पित किया पिता परमेश्वर ऐसे ये परिवार ये बच्चे पिता परमेश्वर अपने जीवन को अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में अर्पित करते हुए पिता परमेश्वर आपकी सेवा करे पिता परमेश्वर आपकी सेवा करे जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना केवल परमेश्वर की उपासना करेंगे करके ऐसा आशीष इनके जीवन में सदा बने रहे पिता परमेश्वर ये बच्चे और ये परिवार आप में सदा आनंदित रहे जैसा आपका वचन कहता है तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो मैं फिर से कहता हूँ कि तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो करके पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में एक दूसरे को थामे रहे पिता परमेश्वर और आपसे लिपटे रहे पिता ताकि आपका आनंद आपका शांति इस घर परिवार में सदा सर्वदा बने रहे रीमाना शाखाला बरीदराबाना शंदालाबाराबा इन्हें देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाए इस परिवार को आप प्रभु इस घर को देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाए पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह
खुदा ऐसा आशीष, ऐसी भलाई इनके जीवन में सदा बने रहे, और ये भी प्रभु आपके सम्मुख सदा बने रहे प्रभु। जो जिम्मेदारी आपने दिया है प्रभु, और प्रभु सच्चाई और खराई से उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इन बच्चों को आशीष करके चलाइए। कलीसिया के सारे बच्चे, हम सारे परिवार मिलकर इन्हें बधाई देते पिता, और कहते हैं हे प्रिय, जैसे तेरी आत्मा उन्नति पाती है, ऐसे हर प्रकार में तो उन्नति पाकर, हर बातों में उन्नति पाकर बड़े चंगे से रहे। इस आशीष वचनों के साथ इनके जीवन बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव में आप ही को देते, यीशु के पवित्र नाम से मांगते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग बाहर, हमारी आगे की सेवा, अभी प्रेयर तो हो गया है, तो बाहर की सेवा होगी। आगे का मैं आपको बताती हूँ। ये लोग बाहर, पीछे बाहर बैठेंगे और हम उनके सामने थोड़े से फ्रूट्स और मिठाई रखिए, और उनकी फैमिली, जैसे पास्टर फैमिली, सिस्टर है, तो से ब्रदर है, और आप सभी लोग, जो लोग, आप जितने भी लोग उन्हें खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं। आपको जो खिलाना है, आपको ऐसा लगा मैं पेड़ा खिलाऊँ, आप पेड़ा खिलाओ। अगर आपको ऐसा लगा मैं बर्फी खिलाऊँ, आप बर्फी खिलाओ। ऐसा कुछ नहीं, आप पेड़ा खिलाओगे तो ऐसा मत सोचो कि लड़का ही होगा। बहुत जो ऐसे करते, पेड़ा खिलाना, हाँ दोनों को खिलाना, दोनों बैठेंगे, सबसे पहले वो एक दूसरे को खिलाएंगे, वो एक दूसरे, आज तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा आप मना नहीं कर सकते। हाँ, तो एक आनंद है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि उन दोनों स्त्रियों ने क्या किया, आनंद किया, और हम देखते हैं कि प्रियो, ये आनंद सिर्फ स्त्री का नहीं, उसके पति का भी है, इसलिए हमें उसका पति उसके बाजू में बैठना ही चाहिए और इस आनंद में सहभागी होना चाहिए। तो ये सिर्फ हम सिर्फ रजनी को खिलाएंगे, तो वो ये बच्चा उसका नहीं है क्या, तो हम उसको भी खिलाएंगे। तो ये पहले एक दूसरे को खिलाएंगे, बाद में हम सभी लोग, जो आपको अच्छा लगता है खिला, एक दूसरे को खिलाओ, सबको खिला। हमें फिर मैं थोड़ी सी सूचना भी बताती हूँ बाहर जाने के बाद, टेबल पे से